ناظرین، آپ کو روپیہ پیسہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جناب پاکستان کا جو بجٹ آیا ہے 2018-19، اور خاص طور پہ اس ضمن میں بات ہوگی کہ ہمارے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو کیا بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، بلند و بانگ دعوے ہوئے۔ بلڈرز اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت ساری امیدیں تھیں، توقعات تھیں کہ جناب یہ بلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے شاید بہت اچھا بجٹ ثابت ہو۔ پہلے جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ بجٹ سے پہلے بلڈر گھبرا گئے کہ جناب والا اب کیا ہونے والا ہے۔ ان کو نوٹس مل گئے کہ جناب بتاؤ کس شخص نے جو ہے وہ الاٹمنٹ کی ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں پرووائڈ کرو۔ پھر یہ معاملہ ایک جگہ رکا، عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پتہ نہیں ان کے معاملات طے ہوئے نہیں ہوئے، لیکن سرسری طور پر ان کو خوشی مل گئی کہ ان کے معاملات طے ہو گئے۔ اس طرح کی چیزیں ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں، جہاں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹیمپریریلی جو ہے خوش کر دیا جاتا ہے، یہ بھی جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن آگے چل کے کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک چیز جس کا مجھے کھٹکا ہے، آگے چل کے ان کو بہت تکلیف دے گی اور شاید ان کی انڈسٹری کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گی، وہ یہ ہے کہ پاکستانی شہری جو کہ نان فائلر ہیں ان سے گھر لینے کے لیے اب جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی، کہ اگر وہ گھر لینے کے لیے جائیں گے تو 4 ملین سے ابو وہ نہیں لے سکتے۔ ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کتنی ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ خیر، حاضر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لالی پاپ ان کو دے دی گئی، اس وجہ سے یہ شاید ایسا تاثر ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کی انڈسٹری کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے ان کی انڈسٹری کو بہت زیادہ اثرات ہوں گے اس ایک فیصلے کی وجہ سے۔ کان کو اس طرح پکڑنے کے بجائے کان کو اس طرح معذرت کے ساتھ، مجھ سے تو پکڑا بھی نہیں جا رہا، ویسے ان سے پکڑوا دیں گے، اور یہ پریشان ہو جائیں گے کہ جب ان کے کسٹمر ان کے پاس آنے سے انکار کر دیں گے کیونکہ وہ نان فائلر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر بالخصوص کراچی شہر کے اندر الوکیشن لیٹر بھی گھومتا ہے۔ فلیٹ لینے کے بعد، اپارٹمنٹ لینے کے بعد، یونٹ لینے کے بعد انویسٹرز اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں۔ انویسٹرز نان فائلر ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ فائلر ہونے کے باوجود ڈیکلریشنز نہیں دے رہے ہوتے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ اپنے فاضل مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں جناب فیاض الیاس صاحب جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں آباد کے، اور حسن بخشی صاحب جو کہ سابق سینئر وائس چیئرمین ہیں آباد کے۔ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام کے اندر۔ فیاض الیاس صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بلڈر کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نالاں ہے کہ اس بجٹ کے اندر ان کے لیے کوئی خاص چیز نہیں رکھی گئی۔ کل کی بجٹ تقریر کے بعد جہاں عوام کو جزوی طور پر پیسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کی انڈسٹری کا ایسا خیال ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا، اپنا جائزہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا علی بھائی آپ کے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بار بجٹ جو ہے پرٹیکولرلی فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ایک اچھا اور پازیٹیو بجٹ دیا جائے گا، جس طرح سے ہماری لاسٹ ڈیو ڈسکشن اور بجٹ پروپوزل جیسے آباد نے جو ہے پریزنٹ کیا تھا ڈفرینٹ فورمز پر، تو جو ایکسپیکٹیشنز ہماری تھی اس کمپلیٹلی بجٹ اس کے اگینسٹ میں ہے، اور ہم کمپلیٹلی جو ہے اس بجٹ کو اس طرح سے نہیں ایکسیپٹ کرتے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ ہمارے لیے ایک اس انڈسٹری کے بوسٹ کے لیے ایک بہتری ہوگی اس میں۔ تو لہٰذا You are not particularly happy or satisfied with the budget. نہیں، ایبسلیوٹلی وی آر ناٹ سیٹسفائڈ۔ دیکھیں نا، جو یہ ایک لائن ڈرا کر دی کی جا رہی ہے کہ بھئی ابو 4 ملین جو ہے وہ آپ اپارٹمنٹس نہیں پرچیز کر سکتے، اور آن دی ادر سائڈ اس وقت اگر آپ کاسٹ آف کنسٹرکشن اور لینڈ کاسٹ کو آپ جب ایویلویٹ کرتے ہو تو آج تو اگر آپ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی بات کرتے ہو تو ان کی بھی آج 4 ملین تک کی افورڈیبلٹی۔ سریا کتنا چل رہا ہے سر ٹن، آپ بتائیں؟ سی ایٹ پریزنٹ ہم جو ہے 95,000 اور 100,000 ان بٹوین سریا ہے، لیکن اس بجٹ میں ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو اس پہ ڈیوٹیز ہے اس پہ کچھ جو ہے ہمیں ریلیکسیشن ملے گا، آر ڈی اور ایڈیشنل آر ڈی کی صورت میں ہمیں تھا کہ جو ہماری ڈیو ڈسکشن ہے اس میں کمی کی جائے گی اور خاطر خواہ اس میں کمی کی جائے گی، لیکن اس قسم کی ساری ایکسپیکٹیشن اس بجٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ سیمنٹ بیگ کتنے کا چل رہا ہے اپروکسیمیٹ؟ سر اس پریزنٹلی تو 500 ابو جو ہمارا سیمنٹ بیگ جو ہے اس کی کاسٹ ہے، بٹ اس وقت جو انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی میں جو ایڈیشنل کیا ہے تو اس صورت میں تو اس کی پرائس مزید اور بڑھ جانی ہے۔ دیکھیں، یہ بجٹ یہ ایک الٹیمیٹ اس کا جو ریئیکشن جو ہے وہ کیا آنا ہے۔ آپ اگر ایک پازیٹیو اور پبلک ریلیٹڈ یا پبلک انٹرسٹ کے لیے اچھی بینیفٹ کے لیے کوئی بجٹ دے رہے ہیں
تو اس میں آپ کو جنرل پبلک جن کی افورڈیبلٹی وہ پرائمری کنسرن ہونی چاہیے، ریونیو سے زیادہ پبلک ویلفیئر آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ حسن بخشی صاحب، جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے، پتہ نہیں کیوں میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا ہے 4 ملین کے اوپر۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے متفق ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، بلیک منی جو ہے اس کو وائٹ ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن دس ول ناٹ ہیپن انسٹنٹلی، اور آپ کسٹمرز کے ساتھ اپنی زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی تم فائلر بنو۔ یہ معاشرے کی اصلاح بلڈر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مطلب ویسے تو معاشرے کی اصلاح ہر کسی کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں تک نوٹو پیسے کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ آپ اپنے کسٹمر کو تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ بھائی اخلاقیات یہ ہیں اور نہیں ہیں۔ آپ اپنے کسٹمر کو یہ بولیں گے جاؤ یار چلے جاؤ، تمہارا پیسہ ٹھیک نہیں ہے، تم فائلر بن کے آؤ، پھر تمہیں اپارٹمنٹ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی ناصر بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مفتاح اسماعیل صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے 6ٹھا کنزیکٹیو بجٹ پیش کیا ہے PMLN کی طرف سے، اور 6ٹھی بار انہوں نے کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ انڈسٹری کو اپنے دور میں نظر انداز کیا۔ تو یہ مبارک کی بات تو نہیں ہے، آپ نے طنز کیا ہے۔ آپ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ انڈسٹری ہے، یہ وہ مدر انڈسٹری ہے جو چلے گی، جس کے ساتھ تو بہت ساری انڈسٹریز چلیں گی۔ انفارچونیٹلی مکس اپ یہ کیا جا رہا ہے، جو پلاٹس کی اسپیکولیشن ہوتی ہے، پلاٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ملا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارا بلیک کا پیسہ ڈمپ ہوتا ہے۔ ہم اس کو یوں نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکان لیتا ہے، جو دکان لیتا ہے، جو فلیٹ لیتا ہے، وہ اس کی اپنی نیڈ اور ریکوائرمنٹ کی وجہ لیے لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریسٹرکشن اگر لگانی تھی تو اوپن پلاٹ کے اوپر لگائی جاتی، یہ کنسٹرکٹڈ یونٹ کے اوپر کس طرح مشکل ہو جائے گا تھوڑا، میرا خیال ہے ایسا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو اور آگے لے کے چلوں، پاکستان میں ماشاءاللہ 20-22 بلین ڈالر کا ریمیٹنس آتا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک فنڈامنٹل رول پلے کرتا ہے۔ FBR کے خود یہ فگرز ہیں کہ اس کا 50% جو آپ کا ریمیٹنس آتا ہے وہ پاکستان میں ایکسپیکٹڈ پاکستانی مکان، دکان، گھر لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی پاکستان سے باہر رہتا ہے اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنے پیسے کماتا ہے، ریمیٹنس بھیجتا ہے، وہ کس قانون کے حساب سے فائلر بنے گا؟ کیونکہ پاکستان میں قانون تو یہ ہے کہ فائلر وہ بنے گا جو 180 دن سے زیادہ پاکستان میں رہے گا یا کاروبار کرے گا۔ تو وہ لوگ تو بیچارے بن ہی نہیں سکتے فائلر لیگلی، وہ فائلنگ کی ریکوائرمنٹ پوری ہی نہیں کر سکتے۔ تو خواہ مخواہ ایک وہ جو 9-10-11 بلین ڈالر آپ کے پاس گھر سے آ رہا تھا، اس کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگ وہ پیسے باہر سے یہاں نہیں بھیجیں گے، وہ پیسے وہیں رہیں گے، کیونکہ ایک ہی ایونیو تھا سیف۔ پھر میں ہاؤس وائف کو، بیوہ کو، مجبور کو، لاچار کو، بزرگ کو کیسے کنونس کروں گا سر کہ وہ فائلر بنے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہاؤس وائف زیادہ تر آپ کو پتہ ہے بیویوں کے نام پہ پراپرٹی لی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ تو خیر میں کہوں گا ہائیسٹ اور موسٹ پاورفل ایکیلونز آف پاور کے اندر بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، ایچیلونز آف پاور کے اندر۔ تو آپ مجھے بتائیں میں ہاؤس وائف کو کیسے کنونس کروں گا کہ تم فائلر بنو اور ان پیچیدگیوں کے اندر جاؤ؟ مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بریف کریں۔ دیکھیں، میں نے ان کو 2 رائے دی تھی۔ میں نے کہا تھا باہر والوں کے جن کے پاس نائکاپ ہے ان سے یہ پابندی ہٹا دیں، اور لوکل لوگوں کے لیے آپ فائلر کے بجائے NTN ہولڈر کی پابندی لگائیں، کیونکہ آپ شناختی کارڈ کو تو آپ نے NTN ہولڈر نمبر بنا دیا ہے۔ اب جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گی IT کے ذریعے ودن 24 آورز آپ کو رپورٹ ہوتی ہے، تو آپ اس میں سے سرچ کریں، اپنا ڈیٹا سرچ کریں، تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کریں، ہراسمنٹ نہیں کریٹ کریں، ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں جس میں لوگ کام کریں اور کام کرنے کو ترجیح دیں۔ سر بلڈر کو تو اس بارے کے اوپر جو میں کہوں گا بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، لیکن ایک بندہ بہت خوش ہے پاکستان کے اندر، جس کو نہ تو جانا ہے اس معاملے کے اندر کہ جناب 4 ملین اس نے گورنمنٹ کو بتانے، اس کا پلاٹ بک بھی جائے گا، اس کے یونٹ بک بھی جائیں گے، وہ فل خوش ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے، آپ لوگ اتنے پریشان نہیں ہو رہے، میرا ایسا خیال ہے۔ ابھی اس بارے میں آپ اپنی رائے دیں۔ نہیں دیکھیں، وہ میں ایک شعر سناؤں، تکلیفیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ ہم بالکل پریشان ہیں، اور پیر کو ایک ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں جہاں پر یہ بجٹ کی انوملیز کو ہم ایڈریس کریں گے، بات کریں گے گورنمنٹ کے سامنے۔ فیاض صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں۔ فیاض صاحب، بنیادی طور پر یہ انوملیز ہیں، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ جو بات میں نے کی میں اس بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ٹیک اے شارٹ بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बजट के अंदर क्या क्या था। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जनाब फयाज़ इलियास साहब से, और फयाज़ इलियास साहब से पूछ रहे थे कि जनाब वाला बताएं ये जो आप कंटम्पलेशन करेंगे, फोकस करेंगे कि जनाब वाला बजट के अंदर आपके लिए क्या है, तो ये जब आप सेशन रखेंगे तो विच आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू हाईलाइट कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये इनसे पूछो क्यों नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट आ गया, ये हमारे बिजनेस को इस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर योर सेट ऑफ प्रायोरिटीज? जी फयाज साहब। अच्छा, इस सिलसिले में हमारी जो डिफरेंट फोरम्स पे जो मीटिंग की और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन से इंटायरली अगेंस्ट बजट है, और हम लोगों ने मल्टीपल प्रपोजल्स दिए थे जिसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ की, देखिए रियल इस्टेट मार्केट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो सेक्टर है जो पूरी आपके मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट देता है, और उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जैसे लोकल पब्लिक है वो रिलेटेड हैं इनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो हमने इनसे जो डिमांड्स की थी, हमने इनसे कहा था कि हमें एक 1% का जो एक क्राइटेरिया वो सेट किया जाए अकॉर्डिंग, जिस पे फिक्स टैक्स के ऊपर, प्लस हमने FTR के हवाले के लिहाज से भी बात की थी। हमें फिक्स टैक्स रिजीम जो लास्ट ईयर बजट में इन्होंने ख़त्म कर दिया था, हमने उस पर भी डिमांड की थी कि इससे पिछले साल जो हमने फिक्स टैक्स रिजीम का जो सिलसिला उसको कंटिन्यू होना चाहिए, उसको भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। हमारे ये भी स्टिल हम इस चीज़ पे चाहते हैं कि फिक्स टैक्स रिजीम को दोबारा इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इधर अगर उसमें किसी किस्म की कोई इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस होना चाहिए, राइट। ऑन द अदर साइड जो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उस पर हमने कहा था कि इसको जिस पे FBR का अपना कहना था कि आप इसको मार्केट वैल्यूज़ पे ले जाएं। देखिए हम अच्छा, खुद कल भी कोई ये चीज़ चाहते हैं। हाईलाइट हुई कोई हाउसिंग सेक्टर के हिसाब से, कल जो आपने देखी हो जो स्पेसिफिकली हाउसिंग सेक्टर को एड्रेस कर रही हो? देखिए, मैं कल देखता रहा, लेकिन जुज़वी तौर पर आपको पता है क्योंकि तकरीर के दौरान आप ये खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि इतना कुछ हो रहा था कि तवज्जो उस तरफ नहीं, कभी रेसलिंग की तरफ जा रही थी कि वो MNAs की आपस में रेसलिंग होने वाली थी, वो रुक गई, कभी कहीं और तवज्जो जा रही थी, बट रियली स्पीकिंग हाउसिंग सेक्टर को एड्रेस किया सर? कोई ये ऐसी चीज़ ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। जिस बड़े सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को पिछले दौर से लेके आज तक इग्नोर किया जा रहा है, और आज भी इस बजट में हमें कोई खातिर ख्वाह ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी गई, ऐसे कोई बेनिफिट इस इंडस्ट्री को नहीं दिए गए। जो इंडस्ट्री पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को चलाती है, उस पूरे मुल्क की इंडस्ट्री के पहिया चलाती है, प्लस उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री से जो लोगों को रोज़गार के जो मौके जो हासिल हैं, वो लेबर, डायरेक्ट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर को जो रोज़गार वहाँ से मिलता है, आप उस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये वो इंडस्ट्री है जिसने पूरे पाकिस्तान की, आज अगर इंडस्ट्री को देखें तो 95% ऑफ द कंस्ट्रक्शन और लोगों को जो छत प्रोवाइड या घर की जिम्मेदारी पूरी करनी, वो इसी इंडस्ट्री और यही प्राइवेट सेक्टर ने ही काम किया है। चलिए मैं हसन बख्शी साहब की जानिब जाता हूँ। हसन बख्शी साहब, आपकी सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ क्या है भाई? आप क्या डिस्कस करेंगे अभी जाकर? अगर गवर्नमेंट आपसे कहती है कि ये आएँ बात करें, तो आप जाकर क्या डिस्कशन करेंगे बतौर एक तंजीम आबाद के या फिर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रेफरेंस से अगर पूछा जाए? बिल्कुल हमारी क्लियर कट प्रायोरिटीज़ हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें कि जो सरिये पे रेगुलेटरी और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी नंबर प्रायोरिटी हमारी ये है कि सेक्शन 236W जो पिछले साल तक था और उसमें 3% टैक्स लिया जाता था, अब उसको रिड्यूस करके 0.5% पे लिया जाए। थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो 1% फेडरल गवर्नमेंट ने किया है प्रिजम्पटिव टैक्स ऑन दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसी तरह 1% ये करें हमारा प्रोविंस भी ऑन दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन टैक्स हो, जो कि प्रोविंस ऑफ सिंध में रीट्स को पहले ही दिया जाता है कि वो मार्केट रेट पे प्रॉपर्टी देगी। इसके अलावा चौथी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम फिक्स रेट FTR यानी फिक्स टैक्स रिजीम को उसका तो इन्होंने जिक्र कर दिया। ये चार हमारी वो प्रायोरिटीज़ हैं कि अगर इस इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करना है तो इनको करना पड़ेगी। इसके अलावा पांचवी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हम कहते हैं कि फॉरेन जो हमारा एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है वो प्रॉपर्टी लेता है तो उसके नाइकॉप को ट्रीट किया जाए NTA नंबर, और लोकल पाकिस्तानी, चूँकि अब गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, कल अनाउंस भी कर दिया कि 1 जुलाई के बाद सबके शनाख्ती कार्ड NTA नंबर ट्रीट होंगे, तो उसको ट्रीट करते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाए।
ये फाइलर की जो पोजीशन है, क्योंकि आज मैंने परसों एक हफ्ते पहले एक मीटिंग थी एफबीआर में जिसमें असद उमर साहब भी थे, मन्नान साहब भी थे। असद उमर साहब पीटीआई से मैंने और मन्नान साहब पीएमएलएन से हैं और एफबीआर की पूरी टीम थी। जब उन्होंने कहा कि हम फाइलर की वो करते हैं कंडीशन और फाइलर एक हफ्ते में बन जाता है, तो मैंने ये कहा उनको, देखिए दो बातें, जो सऊदी अरब से, दुबई से या लंदन से प्रॉपर्टी लेता है और ट्रांसफ़र करने आता है तो वो पैसे पहले भेजता है, उसके भाई पेमेंट तैयार रखता है, पे ऑर्डर, वो 1-2 दिन के लिए आता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और अपनी जॉब्स पे चला जाता है। अच्छा, तो अब होगा ये कि वो मजबूरी, चूँकि फाइलर बनने में आप कहते हैं 10 दिन लगते हैं, तो मैंने कहा कि आप ज़रा कंप्यूटर खोल दें और यहाँ टेबल पे ला के रखें, फाइलर आज अप्लाई करें, कितने दिन लगते हैं। यकीन माने पूरे एफबीआर में एक कंप्यूटर कोई लाने को तैयार नहीं था। मैंने कहा लेट अस डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। जब वजीर होता है ना, हाँ, तो फिर उसके बड़े मज़े होते हैं, उसकी निगाहें कहीं होती हैं, दुनिया कहीं होती है, और फिर जब ओहदे पे नहीं रहता ना, यकीन करें फिर उसको पता लगता है कि आईडी कार्ड बनवाना भी इस मुल्क के अंदर कितना मुश्किल है। और अगर वो बिल्डर बन जाए और बिल्डर बनने के बाद उसे कंस्ट्रक्शन की फाइल पास करवानी पड़ जाए, तो फिर तो आप मत पूछें, उसको लग पता जाएगा कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड होती क्या है। क्योंकि अब तक तो सब मज़े हैं, बिल्डर का दुख उससे पूछें जो फाइल ले के बिल्डर आगे पीछे भागता रहता है। यकीन करें कंस्ट्रक्शन की उसको कोई परवाह नहीं, उसको कुछ पता नहीं कि मैंने किस तरह से यूनिट बनाने, मार्केट करने, उसको पहले हुकूमत से ये अप्रूवल लेनी है, वो अप्रूवल लेनी है, फलां एनओसी लेने के लिए आ गया, फलां दफ्तर पे आ गया। बजट में इसके बारे में भी तो कुछ कह सकते थे कि साहब अगर आप फाइल अप्रूव करवाने के लिए जा रहे हो तो कोई सिस्टम आसान कर दें आपके लिए। मैं आपको यहाँ अपनी मिसाल दूँ, मेरा भांजा आया, पढ़ के आया बाहर से, उसने बोला मुझे कंपनी बनानी है और काम करना है। यकीन माने उसका एनटीएन आने और फाइलर बनने में 2 महीने लग गए। तो हमने उनको ये मिसाल दी कि आप कहते हैं 24 घंटे में फाइलर बनता है तो बनाए, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नहीं बना सकते तो एडमिट करें, एक्नॉलेज करें कमी अपनी। एक चीज़ जो आपने बात की कि जो बिल्डर इधर भागता है उधर भागता है, तो मेरे भाई बिल्डर का 70% वक्त तो उन ऑफिसरान से अच्छे ताल्लुकात रखने में खर्च हो जाता है, बनाने में खर्च हो जाता है, तो काम पे कब तवज्जो देगा। अब तो एक नया इदारा आ गया, अब उसके आसपास भागना दौड़ना पड़ेगा। बड़ी खुशी से आप लोगों ने कहा ठीक है वाइट होने दो, वाइट हो जाएगी, सब कुछ वाइट तो हो जाएगा, लेकिन आपके साथ जो करेंगे वो, ये मैं आपको अभी बता दूं फयाज इलियास साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो नए इदारे के साथ आप मुंसलिक हो गए हो ना, कि आप सोच रहे हो कि आपका काम आसान हो जाएगा, जब इनके पास लगाने पड़ेंगे ना चक्कर, तो यकीन करो ये जहाँ कराची में जिस इदारे के पास जाते हो उनको दुआ देने का दिल करेगा कि ये लोग कितने अच्छे थे, हमारी फाइल कम से कम पास तो कर देते थे। वहाँ जब चक्कर लगाओगे ना आप, पता लग जाएगा आपको। अभी बता रहा हूँ फयाज साहब, फिर बाद में ना कहना जी। नहीं, इस बात पे आपकी बात बचा है। देखें किसी भी देखो बख्शी साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और अपनी हंसी को रोक भी रहे हैं। नहीं, आपका दिल में बात अली भाई, आपका सवाल भी और आपकी बात भी इसी तरह से कि उसके मुस्कुराए बगैर रहा नहीं जा सकता। किसी भी काम के लिए या चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, इधर किसी एक फोरम को या एक इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए आपको देना पड़ता है चीज़ें, उनको बेनिफिट देने पड़ते हैं, उनको सोर्सेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। देन उसके बाद आज इस सारी सूरत हाल में भी हमारी जो लास्ट एक हफ्ता पहले जो मीटिंग हुई है, डीजी ब्रॉडबैंडिंग टैक्स बेस के जो लोग आए हुए थे हमारे पास, उनसे भी हमारी बात, हमने उनको भी इस चीज़ को कहा कि आपको टैक्सेशन और आपको एफबीआर का नेटवर्क आपको बढ़ाना है, तो आबाद इज़ ऑलवेज ऑन बोर्ड। आबाद के जितने मेंबरान हैं दे आर ऑल मेंबर, विदाउट एनटीएन या विदाउट उस रजिस्ट्रेशन कोई भी हमारा मेंबर बन नहीं सकता। सही, तो हम तो हर उस फोरम में एवरीथिंग अबाउट यू। So we want to not give about them, getting registered. They want to know everything about you. we ourselves want to give them everything on a crystal clear position कि हमें देखें हमारा ट्रेड है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह होता है। बिल्डिंग हम बनाते हैं, किसी से हम उसको हाइड नहीं कर सकते, बट उसके अंदर जो मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग ये इस किस्म के जो बजट्स जब दिए जाते हैं, तो जो जनरल पब्लिक पे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है, तो वो जो आज प्रॉपर्टी बाई कर जो प्राइसेस बढ़ती हैं, आज सरिये की सीमेंट पे जो उन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी, स्टील पे उन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी, तो ये फर्दर प्राइसेस जो है 10 to 15% जो आज मार्केट प्राइस है जो उस पर और इस पर इफेक्ट आना है। तो अल्टीमेटली क्या होना है इसका, जो एक वो यूज़र या जो बायर जो मिडिल क्लास लोअर, उनकी 10 तरफ से भी ये चीज़ें बाहर होती जाएंगी। उनको सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 रखना चाहिए था, जो कि अवाम है। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट इन इट, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हाउसिंग सेक्टर के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आम लोग,
Let's take a short break and we'll keep on talking about this. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मुतालिक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना और ख़ास तौर पे बजट के आने के बाद इनकी क्या क्या ऐसी मांगें थीं जो कि पूरी हुई। फ़याज़ साहब के साथ बात करेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि जनाब वाला ये जो कह रहे थे कि जनाब हमारी भी कुछ तवक्कुआत, कुछ उम्मीदें थीं। हमेशा जो है बख्शी साहब ने भी ज़िक्र किया कि दिल टूट जाता है। इस दफ़ा कह रहे हैं छठी दफ़ा दिल टूट गया। इन्होंने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और फिर साथ साथ ये लोग मुस्कुराते भी रहे जब मैंने नए इदारे के मुतालिक बताया जहाँ जाकर इनको अब हाज़िरियाँ देनी पड़ेंगी। इनके मुंशी परेशान है, बिल्डरों के यकीन करें, बिल्डरों से ज़्यादा बिल्डरों के मुंशी परेशान है, उनके अकाउंटेंट परेशान है कि जहाँ पहले कुछ काम किया नहीं जाता था, कच्ची रसीद पे भी हो जाता था, अब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी। आपके ख़्याल से क्या ये चैलेंज आप लोगों को कबूल है? आप कह रहे हैं वक्त के साथ साथ हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, एम्ब्रेस करते जाएंगे। कैन यू एक्सेप्ट एम्ब्रेस सो क्विकली? नहीं, इसमें देखिए टाइमली हमें बहुत सारी चीज़ें माजी में एक्सेप्ट हमने की हैं बहालत मजबूरी, बट अब इन चीज़ों के साथ आगे मूव फॉरवर्ड होना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम नहीं इन सारी पाबंदियों या इस किस्म के बजट के साथ हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, आगे मार्केट की सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा अब इन सारी चीज़ों के हम इस जो हम तो मैं तो पर्टिकुलरली कहूँगा कि इस इलेक्शन गिमिकरी बजट है ये, कि जिसमें आपको मतलब चीज़ें बहुत सारी जो है कैमोफ्लाज की रखी गई हैं। हम कम्प्लीटली इस बजट को कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि इसके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, जिसकी बेटरमेंट के लिए, इनकरेजमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हम ऑन बोर्ड रहेंगे और हमें वो सारी चीज़ें हम डिमांड करते हैं कि वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बख्शी साहब की जानिब दोबारा से जाऊँ। बख्शी साहब, एक जो बात ब्रेक से पहले जो मैं कर रहा था वो ये थी कि आम आदमी की अब बात होनी चाहिए कि आम आदमी के बेनिफिट के लिए क्या चीज़ हुई है हाउसिंग सेक्टर के हिसाब से। देखें, ये एलेबरेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। हाउसिंग जो है बहुत ही अहम चीज़ है, एफोर्डेबल हाउसिंग की भी बात की जाती है। मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आपको बजट में दिखाई दिए जिनसे हाउसिंग जो है एक आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, आसान हो जाएगी? सर, कोई एक स्टेप ऐसा नहीं जो आम आदमी की दस्तरस में एक अफोर्डेबल हाउस ला सके। ये आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। मैं दो बातें इसमें कहना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। एक तो आई एम फोर्सिंग अ मिनी बजट विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months। जो इन्होंने एक पॉपुलर बजट दिया, इलेक्शन बजट दिया, ये चलेगा नहीं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, रियल इस्टेट की जो मैंने 4-5 चीज़ें पॉइंट आउट की थी इससे पहले वाले सवाल में आपको, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बशमूल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको एड्रेस नहीं किया तो ये आज मेरी बात आप नोट कर लें, ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, ये एक बिज़नेस कोलैप्स हो जाएगा। और जो इससे मुस्तलिक लोग हैं जो लाखों की तादाद में, वो आपको सड़क पे नज़र आएंगे, सड़क पे शोर करते हुए, टायर जलाते हुए, हंगामे करते हुए नज़र आएंगे। कोई भी पैकेज में सर चेरी पिकिंग नहीं हो सकती, पिक एंड चूज़ नहीं। एक पैकेज बना के दिया गया है, हम कहते हैं हमें कोई बेनिफिट नहीं, पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो दे दें, कोई सीरियस हाउसिंग मिनिस्टर तो दे दें, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई जब इस इतने बड़ी बिजनेस की, इतनी बड़ी ट्रेड की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की किसी को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो लामाला हमें, मुझे लगता है कि मजबूरी तौर पे, और जिस तरफ हमें ले जाया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरफ हमें ले जाया जा रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, तो आप यकीन माने कि अगले महीने से, मई के 15 के बाद से आप लोगों को थ्रू आउट पाकिस्तान, नॉट ओनली इन कराची, थ्रू आउट पाकिस्तान आप सड़कों पे देखेंगे। नहीं, इतना तो मेरे ख्याल संजीदा मेरे ख्याल लोग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अनस्किल्ड वर्कर जो आपके प्रोफेशन से, आपकी इस फील्ड से एसोसिएटेड है, उसके रिस्क के मुतालिक मेरे जहन में ज़रूर कुछ सवालात पैदा होते हैं। मुझे ये बताएं कि बुनियादी तौर पर ये जो अनस्किल्ड वर्कर्स आपके यहाँ मज़दूरों के तौर पर काम करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए कुछ बजट में आपको दिखाई दिया हो? आम आदमी जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में देखें, आम आदमी के लिए इन्होंने जो बेनिफिट दिया है
मिनिमम वेजेस 16,000 से बढ़ा के शायद 18,000 कर दी हैं, 2,000 रुपये का फ़र्क दिया है। बट हमारी ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन की ट्रेड में 700 रुपये यौमिया और 28,000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, क्योंकि हम 30 दिन काम करते हैं। वहाँ के लेबर को सोने की जगह भी मिलती है और हांडीवाल में खाना भी मिलता है। और अली नासिर साहब, आपने कहा कि इतना एडवर्स रिएक्शन नहीं आएगा, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, और मई का महीना दूर भी नहीं है। आप देख लीजिएगा जब लोगों के रोज़गार पे पैर पड़ेगा, लोगों के, देखें हम काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, लाखों की तादाद में रियल एस्टेट से लोग मुंसलिक हैं। अगर आप सबका ट्रेड बंद कर देंगे, आप वो कहेंगे वो शेख, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ही ज़मीन, दुकान, मकान ख़रीदता है। पाकिस्तानी तो बेचारा 2 लाख रुपए भी जो कमाता है ना सर, वो अपना घर के बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल, वालिदैन का मेडिकल, घर का खाना पीना, गाड़ी का पेट्रोल, वो उसी में बराबर हो जाता है। ये तो यही होता है, या तो वालिद के इंतकाल के बाद कोई ज़मीन बिकती है तो उससे सबको शेयर मिलता है हेरिडिटरी, और वो उससे जाके अपने अपने फ्लैट, मकान, दुकान, या कोई घर में एक भाई या बेटा या बड़ा बाहर होता है, वो कमा के भेजता है, गल्फ़ से भेजता है, वो यूरोप से भेजता है, अमेरिका से भेजता है, दुबई से भेजता है, और उसके बाद वो आदमी मकान लेता है। आप उनको भी मकान लेने से रोक देंगे, वो मजबूरी 2 महीने तो आके नहीं बैठ सकते फाइलर बनने के लिए। वो कहेंगे अली नासिर साहब, अगर मैं गल्फ़ में काम करता हूँ, मैं अपने भाई को बोलूँगा तू ले ले भाई अपने नाम पे, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, आप अपने नाम पे ले लो। होगा ये वो क्यों लेगा? उसके पास फिर उसको सोर्स दिखानी पड़ेगी। हाँ, वो कैसे ले सकता है? चले वो सोर्स ये बताएगा कि मुझे रेमिटेंस भाई ने, पर देखें आप टाइटल का डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। कमाया किसने? 25 साल किसने लगाए बाहर, और इस मजबूरी की वजह से उसको अपने भाई के नाम पे। जिस तरह फैमिलीज ग्रो होती हैं, बाद में लैंड पे डिस्प्यूट्स होते हैं, ज़मीन पे, मकान पे डिस्प्यूट्स होते हैं। मैं यही चाह रहा था कि आप ये बात बोलें कि बाहर से पैसे आएंगे रेमिटेंस की सूरत में जी, और भाई ये बोलेगा कि मुझे तो भाई ने तोहफे में दिए। हाँ, ये भाई भाई का खेल कहीं आम आदमी को तो छोड़ें, कहीं सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए कारामद नहीं रहेगा। देखें सियासतदानों के लिए तो बहुत से रास्ते खुले हैं, वो तो कहीं पर भी अपना बैंक से ओडी लेके काम कर सकते हैं। अटैची ले जाने वाली भी होती है, वो तो प्राइवेट प्लेन्स हैं। अटैची ले जाने वाली भी होती हैं फयाज साहब, वहाँ तो अटैची चला भी जाता है, लोग छूट भी जाते हैं। फयाज साहब ये मुझे बताएं, मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि वो आज भी वजाहत करें कि किस तरह से रेमिटेंस के ज़रिए जो है वो मामला तय किए जा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी ये भी चाहिए कि जैसे बताया भी बख्शी साहब ने कि दे आर एंड यू आर वेरी जैसे आप कहें एजिटेटेड बाय ऑल ऑफ दिस, तो जो बात उन्होंने संजीदगी से कही है, आप भी मुत्तफिक हैं? क्या वाकई में बिल्डर कम्युनिटी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो मामलात आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, इस बात को मैं फर्दर हसन की बात को मैं इन कंटिन्यूएशन में कहूँगा कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ इस वक्त दी जा रही हैं, ऑलरेडी जिन कुछ ऐसे फैसले पिछले दिनों या पिछले टाइम में आए हैं, पिछले साल भर पहले, कि जिस वजह से ऑलरेडी ये इंडस्ट्री अंडर द स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला है। अगर मज़ीद इस किस्म के और फैसले आएंगे तो अगर ये स्टेट अगर ये चाह रही है कि इस किस्म की पॉलिसी दी जा रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो जाए या उसको बंद कराना चाहते हैं, तो हमें क्लियर कट एक जो है क्रिस्टल क्लियर कट हमें ये बता दिया जाए कि हम इस इंडस्ट्री को फर्दर नहीं चाह रहे कि ये चलनी चाहिए, और हम इस इंडस्ट्री के साथ जितनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हमें क्लियर कट पोजीशन बता दी जाए, हम तमाम चीज़ें हम चाहेंगे कि हम बंद कर दें ताकि ये इश्यूज़ ही ख़त्म हो जाए। प्रोविंशियल बजट से भी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि एम ये है कि अब ये लोग बार बार कहते हैं कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद मामलात बहुत हद तक सूबों के पास आ गए हैं। अब जो भी बात है, आई कैन नॉट से द इम्प्लीकेशंस, लेकिन मेरे ख्याल आगे आने वाले दिनों के अंदर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप सब लोगों को हम प्रोग्राम के अंदर मदऊ करें, और ख़ास तौर पे ये भी जानने की कोशिश करें कि सूबाई बजट्स जो हैं वो कितने अहम हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर आज तशरीफ़ लाए, और हमने कोशिश ये की कि हम वफाकी बजट को आपके ज़ाविये से देख भी सकें, समझ भी सकें, उस पर कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि एक गुफ्तगू भी हो और एक बात भी निकल कर सामने आए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।